بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ یقیناً مسلمانوں کے لیے یہ غم کی گھڑی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت، اپنا پیار، جس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے نوازا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جس بیٹی کو آپ نے اپنا لخت جگر قرار دیا، گوشہ جگر قرار دیا، جگر کا ٹکڑا قرار دیا، آپ نے اپنی وہ صاحبزادی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ کرام سے ایک بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ تمام صحابہ کرام کی نظریں اسی طرف لگ گئیں، ذہنوں میں ایک جستجو تھی، تلاش تھی کہ وہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، آپ کو لایا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور وہ تکلیف ایسے جاتی رہی جیسے تھی ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جس کا کل اعلان کیا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھمایا، اور یہ منظر انتہائی قابل رشک تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، البتہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ گویا میری ذمہ داریاں علی پر ہیں اور علی کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، اور یہ محبت کا ایک انتہائی اظہار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اے علی، تیری وجہ سے دو طبقے دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ جو انتہائی یعنی دونوں ہوں گے، لیکن ایک وہ جو تیری محبت میں انتہائی غلو کرے گا، اور ایک وہ جو تجھ سے نفرت کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی جائے، اور اسی دائرے میں جس دائرے کو اللہ کے رسول نے کھینچ دیا ہے اس دائرے سے باہر نہ جایا جائے، اور نفرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ لہٰذا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، پیار، اور تمام اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو پاس بلایا، اور لوگوں سے جتنے بھی وہاں موجود تھے سب سے کہا، یہ میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کی جانی چاہیے، یہ ان کا استحقاق ہے، ان سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور کسی بھی طرح اگر کوئی شخص اس میں تنقیص کا پہلو نکالتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تقاضا ہے ایمانیات کا کہ جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھی جا رہی ہے،
इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब से वही मोहब्बत, वही प्यार, वही खुलूस और वही जज्बा होना चाहिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम के लिए इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में किसी भी तरह की ज़ुबान दराजी से अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में किसी तरह की ज़ुबान दराजी ना करें। देखें दुनिया में आज हम कितना भी कोर्स कर लें, पढ़ लें, इबादत कर लें, तहज्जुद पढ़ लें, रोज़े रख लें, हज कर लें, आज हम सहाबी का रुतबा नहीं पा सकते। इसका कोई कोर्स नहीं कि हम सहाबी बन सके। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को इन आंखों से हालत ईमान में देखा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं डॉक्टर साहब कि जिस आंख ने हालत ईमान में मुझे देखा है, अल्लाह ने उस आंख पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया। फिर सिर्फ उस आंख को नहीं, फिर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया, फरमाया जिन लोगों ने उनको देखा, जिन्होंने ईमान की हालत में मुझे देखा, उन पर भी अल्लाह दोज़ख की आग को हराम कर दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के साथियों को, अपने नबी के प्यारों को वो रुतबा दिया है। वो रुतबा हम अपने दिलो दिमाग में बिठाएं, उस रुतबे को हम दिलो दिमाग में बिठाकर उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार कर रखें, उनसे इज्जत और एहतराम के साथ पेश आएं। और किसी भी महफिल में देखिए सहाबा किराम का एक खास अंदाज था, खास अंदाज था। वो आपस में इख्तलाफ भी रखते थे, हमारे इख्तलाफ भी जैसे हो जाते हैं, सहाबा किराम में भी इख्तलाफ होते थे, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ की सूरत में एक दूसरे का एहतराम कभी दिल से नहीं निकाला, एहतराम को हमेशा बरकरार रखा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझो चौखट पर पड़े रहे, मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा में से हैं, वहां बैठे रहते हैं, एक ही इंतजार होता है आप कुछ फरमाएं और मैं उसे सुनकर याद करके दूसरों तक पहुंचाऊं। आप कुछ करें, मैं आंखों से देखूं और दूसरों तक प्यारे रसूल का प्यार, दुआ भी उनको है, दुआ भी बिल्कुल। बल्कि एक दफा उन्होंने शिकवा किया, अल्लाह के रसूल मैं आपसे कुछ सुनता हूं और सुनकर उसे भूल जाता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा अपना दामन फैलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू हुरैरा ने ऐसे दामन फैलाया जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा हमारे डॉक्टर साहब ने एक गरीब की मदद के लिए अपना दामन फैलाया। हजरत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना दामन फैलाया। अल्लाह के रसूल ने चुल्लू भरे, वो बज़ाहिर ना आटा था, ना गंदम था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। आपने ऐसे फिजा में चुल्लू भरे, 3 चुल्लू, और अबू हुरैरा की झोली में डाल दिए। झोली में डाले और फरमाया इस झोली को समेटकर अपने सीने के साथ लगा लो। सैयदना अबू हुरैरा ने उस झोली को समेटा और सीने के साथ लगाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो दिन है और आज का दिन मुझे नहीं याद कि अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से मैंने कुछ सुना हो और फिर मेरे जहन से वो चीज भूल गई हो। मैं कभी भी, यानी अल्लाह के रसूल की उस दुआ से। अब आप इससे ये भी एक बात अंदाजा लगा लीजिए, हम लोग दुआएं मांगते हैं, अक्सर मैंने देखा है, और वो लोग समझते हैं शायद दुआ का कोई वजूद नहीं है। दुआ का वजूद है। आप हाथ फैलाते, एक हाथ इधर रखा हुआ है, एक हाथ इधर रखा हुआ है, और फिर जब खत्म होती है तो ऐसे पीछे फेंक के चले जाते। जो मांगा है उसे आप फेंक के जा रहे हैं, फायदा क्या आया? फिर आप हाथों को मिला के इस तरह दोनों, जिस तरह एक फकीर किसी देने वाले के सामने हाथ फैलाता है और वो कोई चीज देता है, वो इस तरह हाथों को जोड़ता है ताकि कोई चीज गिर ना जाए। अल्लाह के आगे अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। वहुवल गनी, गनी तो कायनात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सारे उसके दर के भिखारी हैं और अल्लाह हमें अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज न करे। सैयदना अबू हुरैरा में अर्ज कर रहा था जी, मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात सुनते हैं, याद करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। इनके मुकाबले में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कभी भी
तालिब इल्म बनकर असहाब सुफ़ा के साथ नहीं बैठे। उनकी जिंदगी का एक ही मिशन, एक ही शौक, एक ही ज़ौक़ है कि घोड़े की पुश्त पर बैठे रहते हैं, तलवार हाथ में होती है और तलवार हाथ में लेकर वो उनका एक ही जज्बा है, या किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। एक ही बात उनकी जुबान पर है। कभी अबू हुरैरा को सैयदना खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा, अबू हुरैरा तू तो कभी तलवार हाथ में नहीं लेता, तूने कभी छुरी हाथ में नहीं पकड़ी, और तू किस तरह जो है तू इस तरह अपना सिर्फ सारा दिन हदीसें सुनता है, लिहाजा इस मेरी जो है वो नौज बिल्ला तेरे पीछे नमाज नहीं होती, या मेरा मिजाज तेरे साथ नहीं मिलता। कभी उनका एहतराम दिल से नहीं निकाला। कभी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा, ऐ खालिद तू तो सारा दिन तलवारें लेकर फिरता रहता है, कभी नबी के सामने दो जानू होकर नहीं बैठा, लिहाजा मैं तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। कभी उनका एहतराम अपने दिल से नहीं निकाला। हमेशा एहतराम रहे, हमेशा एहतराम। मैं अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा किराम का इसी तरह अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ या कभी भी किसी भी मौका पर किसी भी नुक्ते पर अगर उनका इख्तलाफ होता था, दिल में एहतराम बाकी रहता था, दिल में मौजूद रहता था। और यही वस्फ अगर आज हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, यकीन मानिए हम शीरो शकर हो जाए। और सहाबा किराम को हम अगर मिसाल बना लें तो यकीनन हम एक मिसाली मुआशरा अपने अंदर कायम कर सकते हैं। सहाबा हमारे लिए नमूना है, मशाले राह हैं। हम उनको नमूना बनाकर अपने अंदर से कदूरतें निकालें, नफरतें निकालें, उसकी जगह मोहब्बत डालें, मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। और ख़ासकर ये जो रातें हैं, ये रातें मिलने मिलाने की ही रातें हैं, अल्लाह से मांगने की रातें हैं। अल्लाह के रसूल से अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर ये रात मुझे अल्लाह मुहैया कर दे तो मैं रब से क्या मांगूं? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा दे। और जब अल्लाह आपको माफ फरमा दे तो समझो आपको सब कुछ मिल गया।